Good morning, students. In the last class, we discussed about proton, electron, and neutron, where we learned that proton and electron these are the charged particles of an atom. We know that proton is positively charged and electron is negatively charged. We learned that the electron was discovered by J. Thomson. In today's class, we'll discuss the process by which he discovered the presence of electron within an atom. So here the experiment done by him, that is discharge tube experiment. So what happened in discharge tube experiment, let me discuss about it. So discharge tube is actually a glass tube like this. Okay, this one is the discharge tube having a pump with a key. This one is the gas pump. By using this gas pump, we can moderate the pressure within the discharge tube. Means we can input some gases within the discharge tube, or we can remove the gases within from the discharge tube, by which we can maintain the pressure within the discharge tube, and this pressure can be reduced in a very low value. It can be tends to its to the vacuum. Okay, like this. So here two metal plates are shielded in this discharge tube. Two metal plates are shielded in this discharge tube. These two metal plates are connected with a battery to the wires. Okay. So they are connected to a battery. Battery having high voltage, 10,000 volts. Okay, with a high voltage. Now, within the discharge tube, this one is the setup of the discharge tube. Now, we know that there are two ends in battery. One is positive end, another is negative end. The metal plate which is connected to the positive end of the battery, that will be charged as positive, and the metal plate which is connected to the negative end of the battery, it will be negatively charged. The positively charged, these metal plates are then called electrodes. Okay, this positively charged electrode is called anode, and the negatively charged electrode is called cathode. Right? He did something other like this. He used this anode having some small pores. They are not separated to each other, but in this metal plate there are some pores. Okay, मीन्स इस मेटल प्लेट में कुछ छोटा छोटा छेद जैसा है, छोटा छोटा होल जैसा है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे. दिस porous electrode is called perforated electrode, or you can say perforated anode. Now, on the back side of this perforated anode, within the discharge tube, he took a layer of a substance that is called fluorescent substance. Okay, चेक कर लेना, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कर लो. Fluorescent material, or you can say fluorescent substance, like zinc sulfide. So what do you mean by fluorescent substance? Fluorescent substance कुछ ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर अगर कोई लाइट आके फॉल करता है, लाइट आके गिरता है, तो वो चमकता है. ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो रेल लाइन होते हैं उसके पास ऐसे एक साइन हुआ रहता है ना, साइन दिया हुआ रहता है, तो बहुत दूर से वो चमकता है. ठीक है, तो दिस आर फ्लोरोसेंट मटेरियल. तो फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसा कुछ मटेरियल है जिनके ऊपर अगर लाइट गिरता है तो वो चमकता है. सो हियर इट इज व्हाट यू ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम हियर द प्रेशर वाज वेरी लो. इसके अंदर प्रेशर बहुत कम था, मीन्स नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल वाज वेरी वेरी लो. ओके, इसका प्रेशर था 10⁻³ -3 मिलीमीटर Hg. ओके,
10⁻³ मीन्स 0.001 मिलीमीटर एच हम लोग के आसपास था। इन जनरली एट प्रेजेंट प्रेशर 760 मिलीमीटर एच के आसपास, 760, ओके 760, बट हियर इट इज 0.001। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा है कि ये प्रेशर बहुत ही कम है। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व सम इनविजिबल रेज कम्स फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। तो उन्होंने क्या देखे कि कुछ इनविजिबल कलरलेस रे comes from anode and moves towards cathode। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये इनविजिबल है और कलरलेस है तो दिखा कैसे? तो बात ये है कि उन्होंने एक्चुअली देखे नहीं, उन्होंने क्या अनुभव किए कि जैसे कि ये दोनों कनेक्ट कर दिया गया तो इसके पीछे ये वाला पोर्शन चमक रहा था, ठीक है। तो ये जो इसका जो पीछे वाला पोर्शन है, एनोड का जो पीछे वाला पोर्शन है, ये चमक रहा था। तो ये चमक रहा है मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ आके इसके ऊपर गिरा होगा, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे गैसियस पार्टिकल कम है तो गैसियस पार्टिकल आके तो गिरा नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रे आके गिरा होगा इसके ऊपर, ओके। तब उनको समझ में आया ज़रूर यहाँ से कुछ रे रिलीज हो रहा है, रिलीज होके कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो यहाँ से जो रे यहाँ से रिलीज होके एनोड, परफोरेटेड एनोड के अंदर से जाके इसके ऊपर गिरा, तब ये चमकना स्टार्ट किए, ठीक है, चमकने लगे। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ से कुछ रे रिलीज होके एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करके ये जो रे था, इस रे का नाम दिया गया कैथोड रे। अब जो कैथोड रे के बारे में और क्या क्या पता चला, देखो इसके ऊपर बेस करके उन्होंने और भी बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इसके अंदर के क्या एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, क्या किए उन्होंने, इसके अंदर कुछ पैडल व्हील रख दिए थे, ठीक है। पैडल व्हील मतलब जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो व्हील और पैडल रहता है उसमें, उसी टाइप का, बट बहुत लाइट मास का, बहुत ही कम मास का। तो ये क्या देखे उन्होंने कि ये पैडल व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है, ओके, पैडल व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है। तो जब रोटेट हो रहा है तो मतलब कोई आके इसके ऊपर धक्का दे रहा है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो नॉर्मली अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, अगर पैडल के ऊपर फोर्स नहीं देंगे तो वो रोटेट करेगा नहीं अपने आप, राइट। तो कोई ये पैडल रोटेट हो रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई आके इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो रे है ये आके इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जब आके फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो है, इस रे के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल तो होगा ही, है ना। तो रे के अंदर ज़रूर कुछ पार्टिकल तो होगा जो जिसके पास मास है, ओके। और ये पैडल व्हील का रोटेशन का स्पीड भी बढ़िया था, स्पीड भी अच्छा था। इट मीन्स दैट कि जो आके धक्का दे रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड लेके, आई मीन वेलोसिटी के साथ आके इसको कोलाइड किया। इट मीन्स कि ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे के अंदर कुछ पार्टिकल है विथ अ लाइटर मास बट विथ अ हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी। ये पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका मास बहुत कम है, लेकिन मास है, मतलब वो पार्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला पता चला। और क्या पता चला उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर बहुत छोटे कार्डबोर्ड रखने से क्या पता चला कि कार्डबोर्ड रखने से पीछे देखा गया इसका शैडो बन रहा है। अब देखो शैडो कब बनता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये मेरे हाथ का यहाँ पे शैडो बन रहा है ना, ये जगह शैडो बन रहा है। अब ये शैडो क्यों बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट आके यहाँ पे रुक गई, है ना, ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इसलिए पीछे शैडो बन रहा है। अगर लाइट जैसे कि ऐसे आ रही है, मान लो लाइट ऐसे आके ऐसे, देखिए कुछ रुकावट है यहाँ पे, तो लाइट घूम के इधर से चली गई, ठीक है। अगर ऐसा होता तब तो पीछे शैडो नहीं बनता, तो शैडो बना क्योंकि ये रुक गई। तो इसका मतलब लाइट जो है ये क्या था, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसीलिए शैडो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे शैडो बन रहा है, तो ये वाला जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, ओके, सीधा जा रहा है। तो ये सब पता चला। तो क्या क्या पता चले, उसके बारे में देख लेते हैं।
कैथोड रे के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। नंबर 1, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज, देखो बच्चों ये कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से बन के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है ना। कैथोड से बनता है, कैथोड नेगेटिव है, और कैथोड से बन के नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से बन के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो खुद तो नेगेटिव हो गए, तभी तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। ओके, नंबर 2, कैथोड रे इज इनविजिबल and colorless। ठीक है, having a particle of lighter mass, having a particle of lighter mass and high and moving with a high velocity, ठीक है, विद हाई वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ कैथोड रे का पार्टिकल जो है वो मूव किए जा रहे हैं। ठीक है, कैथोड रे originated from cathode and moves towards एनोड। कैथोड रे से बनते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ पर दिखा देते हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कोई मेटल प्लेट, चार्ज मेटल प्लेट रख दे, मतलब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव मेटल प्लेट रख दी, यहाँ पे नेगेटिव मेटल प्लेट रख दिए, तो देखा जा रहा था ये कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ घूम जा रहा है, पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ घूम जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज़ आपको ठीक से ना देखा तो आप ऐसे समझो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब में कनेक्ट करिए, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इस जगह पे हम लोग एक पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मेटल प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। देखा गया ये वाला कैथोड रे जो है वो ऐसे घूम गया। तो देखो कौन सी पार्टिकल है, कौन सी चीज़ है जो पॉजिटिव की तरफ घूम जाता है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, दैट इज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये पता चला। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमें मिला, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास 11 में आप लोग सीखेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं कर रहे। ये 4 इन्फॉर्मेशन आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। अब और एक बात, कैथोड रे जो है उन्होंने क्या किए, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मेटल प्लेट्स और अंदर का जो गैस है उसको चेंज किए है। ये वाला जो डिस्चार्ज ट्यूब में है, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वाला जो गैस है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वाला जो गैस है, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, सक्शन पंप, 10⁻³ मिलीमीटर Hg प्रेशर, यहाँ से यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट है। ठीक है, तो बात ये है, इन्होंने जब देखे ये जो कैथोड रे जब रिलीज हो रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ
तो इसको हम लोग कैथोड लिख लेते हैं, यहाँ पे एनोड लिख लेते हैं। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये भी तो आपको समझ में आया। उन्होंने क्या किया, इसके अंदर तो गैस रखे थे बस बहुत ही कम रखे थे, अब इस गैस को चेंज कर दिया, कभी हाइड्रोजन कभी हीलियम कभी दूसरा कुछ गैस को चेंज किया, कभी उन्होंने मेटल प्लेट्स को चेंज किया। लेकिन देखिए हर एक बार एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम आ रहा है। इट मीन्स ये कैथोड रे में जो पार्टिकल है, कैथोड रे में जो पार्टिकल है, तो पार्टिकल इन कैथोड रे is a fundamental particle, is a fundamental particle, वो सभी में होते हैं, सभी में होते हैं। किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल हो गया कैथोड रे वाला पार्टिकल। तो ये पता चला, मतलब जब गैस को चेंज किया जा रहा है, मेटल प्लेट को चेंज किया जा रहा है, तो इस रे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये रे चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये वाला पार्टिकल सभी एटम के पास होंगे। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्टिकल सभी एटम के पास होंगे, ये पता चला। तो इसीलिए इस पार्टिकल को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। इस पार्टिकल को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाद में इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई किया, दिखाया कि ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को समझाया विद इन द एटम एंड दस इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। तो ये था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का हिस्ट्री, और जिसके लिए 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला। नॉट ओनली दैट, जे थॉमसन ने इसके बाद मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटॉन डिस्कवरी के बारे में सीखेंगे। प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक मॉडल बनाया। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके ऊपर एक मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जे थॉमसन मॉडल, फॉलोड बाय द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से देखिए और कैथोड रे का जो प्रॉपर्टीज है उसको याद करें। थैंक यू।